Good morning. Remaining student will join the class quick fast. Lecture will be started very soon. So the remaining student will join the class quickly. Okay. Let us start the lecture. So I will share the screen. Okay. In last class, we have to study about the difference between the combinational circuit and the sequential circuit. Whereas in case of sequential circuit, there is the basic component is the flip flop. There are the five types of flip flop. First one is the SR flip flop. So we have to study about the designing of the SR flip flop by using the firstly designing the SR flip flop by using the bistable multi vibrator. Okay, there will be the two transistor are connected into the twisted form where the one transistor output is connected to another one input and the another transistor output is connected to first one transistor input. Okay, these are the connection in twisted form, the basic formation of the bistable multivibrator and creating the particular square waveform. Okay, next we have to design the SR flip flop by using the universal gate, that means the NAND gate and NOR gate. So firstly design the SR flip flop by using the NOR gate. Afterward we have to design the SR flip flop by using the NAND gate. This is the designing of the SR flip flop by using the NAND gate, and this is the truth table condition. Okay. Afterward, we have to study about the clock RS flip flop. Clock RS flip flop. There is the combination of the NAND gate, designing of the NAND gate. Okay. Input is the S and R, which are the NAND gate first and second are connected to clock pulse. Clock pulse is responsible to activate the particular circuit for the SR flip flop. Okay, output is Q and Q bar. Next, we have to design and analyze the characteristics table of the clocked RS flip flop. Okay, so in case of clocked RS flip flop, we have to study about the each and every state of the output state, that is the no change condition, set condition, reset condition and the indeterminate condition. Afterward by using the K-map analysis to derive the output equation for the uh, Qt plus 1. Okay, so Qt plus 1 basically the expression is the S plus R bar Qt, where the S and R are the input, Qt is the previous output and Qt plus 1 is the next output. Okay, so this is the characteristics equation for the output of the S clocked RS flip flop. Okay, and the second one characteristic equation is the S into R equals to 0. So this is the basic overview of the sequential circuit and the combinational circuit. Flip flop is the one bit memory element. Flip flop is also known as the latch, where the implement the application of the clock pulse. There is the next is the type of the flip flop. There are the five type of flip flop: SR flip flop, D flip flop, JK flip flop, T toggle flip flop, and the master slave JK flip flop. The basic first one flip flop is the SR flip flop. Designing approach are using by using the universal gate. The first one universal gate is the NAND gate. So basic combination of the NAND gate are designing the SR flip flop. This is the truth table for the SR flip flop designed by using the NAND gate. These are the various cases
are observed in the SR flip-flop when the S and R both are equals to 1, S equals to 1, R equals to 1, set state, S equals to 0, R equals to 0, no change condition. So there are the basic different types of states or condition are observed in the analysis of the SR flip-flop. नेक्स्ट अपन ने SR flip-flop को एनालिसिस करा दूसरे यूनिवर्सल गेट. दूसरा यूनिवर्सल गेट क्या है? नॉर गेट. नॉर गेट के रेस्पेक्टिव अपन ने एनालिसिस करा. S और R पे 0 है, नो चेंज कंडीशन. 1-1 है तो रेस अराउंड कंडीशन. 0-1 केस में 0-1 आउटपुट स्टेट आएगी. 1-0 के केस में सेट स्टेट रहेगी. सेट स्टेट में QT+1 क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उसका एनालिसिस. अब इन दोनों इस वाली पीपीटी में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऊपर वाले केस में इस वाले ऊपर वाली जो सर्किट बनाया हुआ है इस केस में अपन एनालिसिस कर रहे हैं कि क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रखा है किस किस फॉर्म में से? बाय यूजिंग द नॉर गेट, नॉर यूनिवर्सल गेट. ओके, तो इसके इनपुट में कौन से गेट है? एंड गेट है. आउटपुट में क्या है? नॉर गेट है. ओके, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि अपन ने इसको दूसरे यूनिवर्सल गेट नैंड गेट से अपन ने SR फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कर रखा है. ठीक है, तो S कनेक्टेड है, R कनेक्टेड है, इनपुट कनेक्टेड है. बोथ first NAND gates are also connected to clock pulse and output is Q and Q bar. Okay, नेक्स्ट अपन SR फ्लिप फ्लॉप के स्टडी अपन प्रीवियस लेक्चर में देख ही चुके हैं. इसका ओवरव्यू अपन ने देख लिया. अपन नेक्स्ट अपन आज स्टडी करेंगे डिले फ्लिप फ्लॉप, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप. So basic difference between the SR flip flop and the delay flip flop is that in case of delay flip flop there is a single input. जैसे अपन SR फ्लिप फ्लॉप के केस में दो इनपुट हैं S एंड R, जबकि डिले फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या रहेगा? सिंगल इनपुट रहेगा. इनपुट क्या रहेगा? D. इस केस में इनपुट क्या है? इसमें D है. ठीक है, अब सिंगल इनपुट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो अपन SR फ्लिप फ्लॉप में देख रहे हैं उन दोनों को क्या है? इंटर कनेक्टेड कर दो. सो S और R आर कनेक्टेड. S और R दोनों को अपन इंटर कनेक्टेड कर दें. ये दोनों इंटर कनेक्टेड कर दें. पर चेंजेस क्या है कि S एंड R आर कनेक्टेड और बाउंड विद इन्वर्टर. दोनों इनपुट को कनेक्टेड करना है पर किसके रेस्पेक्टिव करना है? इन्वर्टर के रेस्पेक्टिव में. दोनों इनपुट के अपन ने दोनों इनपुट को कनेक्टेड कर दिया पर किस फॉर्मेशन से करा अपन ने? ओके, दोनों इनपुट को कनेक्ट करा. दोनों इनपुट के किससे रेस्पेक्टिव कनेक्ट करा अपन ने? दोनों को सिंगल इनपुट S एंड R आर कनेक्टेड विद द इन्वर्टर. S और R को कनेक्टेड करा विद इन्वर्टर. ओके, ये इन्वर्टर है. ठीक है, so the basic difference between the SR flip flop and the delay flip flop is that both the input S and R are connected with the inverter. With the inverter both are connected. ये क्या है? यहाँ पे इन्वर्टर है. इन्वर्टर that means the NOT gate. इन्वर्टर का मीनिंग क्या रहेगा? NOT gate रहेगा. बाकी इन दोनों सर्किट्स में अपन देखें दोनों सिमिलर हैं. इसके आउटपुट में NAND गेट है, यहाँ भी आउटपुट में NAND गेट है. यहाँ के इनपुट में NAND गेट है, यहाँ इनपुट में NAND गेट है. यहाँ इसके दो इनपुट थे S और R, यहाँ पे सिंगल इनपुट बना दिया है. सिंगल इनपुट क्या है? D है. ठीक है, दोनों को इंटरकनेक्टेड कर दिया है. किससे इंटरकनेक्ट करा है? इन्वर्टर के थ्रू. इसके थ्रू कनेक्टेड करा है इन्वर्टर. इन्वर्टर क्या है? नॉट गेट. नॉट गेट में क्या रहेगा? इनपुट A है तो आउटपुट क्या आएगा? A बार. ठीक है, इन दोनों इनपुट्स को अपन ने किससे कनेक्ट करा है? क्लॉक पल्स से. यहाँ सिमिलरली दोनों इनपुट को किससे कनेक्ट करा? क्लॉक पल्स कनेक्टेड करा. इज इट क्लियर? सेम ही है दोनों सर्किट्स, बस ये डिफरेंस है यहाँ सिंगल इनपुट बनाया हुआ है. ओके, अब दूसरी इसकी स्पेशलिटी क्या है? डिले फ्लिप फ्लॉप की स्पेशलिटी क्या है कि इन केस ऑफ डिले फ्लिप फ्लॉप देयर इज द नो कंडीशन ऑफ रेस अराउंड कंडीशन.
SR फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम क्या है कि देयर विल बी द रेस अराउंड कंडीशन व्हेन बोथ द इनपुट S और R दोनों पर अगर अपन 1-1 दे रहे हैं तो उस केस में कौन सी कंडीशन आती है वहां पे रेस अराउंड कंडीशन. बट इन केस ऑफ डिले फ्लिप फ्लॉप देयर इज नो एनी वन टाइप ऑफ रेस अराउंड कंडीशन. मतलब रेस अराउंड वाली कंडीशन इसमें अवॉइड हो जाएगी इन केस ऑफ डिले फ्लिप फ्लॉप. ओके, अब इसके ट्रुथ टेबल को अपन एनालिसिस करें. ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव क्या है, Q प्रीवियस आउटपुट है, D इनपुट है, QT प्लस 1 नेक्स्ट आउटपुट है. ठीक है, Q इक्वल्स टू 0 है, D इक्वल्स टू 0 है, नेक्स्ट आउटपुट QT प्लस 1 क्या है 0 आएगा. ठीक है, D इनपुट पे अपन ने 1 दिया, प्रीवियस आउटपुट 0 था, नेक्स्ट क्या 1 आया. इनपुट पे 0 दिया, प्रीवियस 1 था, नेक्स्ट क्या आया 0 आ गया. इनपुट पे 1 दिया, प्रीवियस 1 था, नेक्स्ट क्या आया 1 आया. अब इस ट्रुथ टेबल में ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि जो इसकी नेक्स्ट आउटपुट है, नेक्स्ट आउटपुट स्टेट है QT प्लस 1 है, वो एक्चुअली किसके इक्वलेंट है या किसके इक्वल है D के. यानी इनपुट अगर 0 दे रहा हूं तो भी आउटपुट 0 आएगा, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, इनपुट अगर 0 है आउटपुट 0 है, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट भी 1. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, QT प्लस 1 जो आउटपुट स्टेट है वो एक्चुअली किसके इक्वलेंट है इनपुट के, और इनपुट क्या है यहाँ पे D है. तो फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आएगी इसमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगी कि आउटपुट स्टेट QT प्लस 1 क्या है D के. अब इस वाली इक्वेशन में कोई भी QT की टर्म नहीं है, इस Q की टर्म नहीं है. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट कंक्लूजन इज दैट द आउटपुट स्टेट इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस आउटपुट. ओके, दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस आउटपुट, इट इज जस्ट डिपेंड अपॉन इनपुट. अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 है. तो QT प्लस 1 इक्वल्स टू D. क्लियर हुआ. अब अगर इसके K मैप से अपन बनाए, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को K मैप से सॉल्व करें, उसकी इक्वेशन डेराइव करें तो कैसे होगा. इसमें SOP फॉर्म के रेस्पेक्टिव 1-1 कहाँ प्रेजेंट है, ये एक 1 यहाँ प्रेजेंट है. यहाँ पे क्या है, Q की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू 1 है. तो Q की वैल्यू 0, D की वैल्यू 1, ये फर्स्ट 1 आ गया. यहाँ पे दूसरा 1 कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ Q की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 1 है. तो Q की वैल्यू 1 होगी, D की वैल्यू 1, तो ये सेकंड 1 है. माइक ऑफ करो बेटा, माइक म्यूट करो. ओके, सो नेक्स्ट इज अप्लाई द K मैप में जैसे 1-1 एस्टेब्लिश कर दिया, 1-1 प्रेजेंट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है K मैप में, बाय मेकिंग द ग्रुप. इसमें ग्रुप बनाने, तो ग्रुप कितने का बनेगा, डबल का ग्रुप बनेगा, 2 का ग्रुप बनेगा. इसमें ये 2 का ग्रुप बन गया. अब ओरिएंटल डायरेक्शन में Q की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 1 है, कोई भी कॉमन नहीं है. वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में D की वैल्यू क्या है 1 है. तो फाइनल आंसर क्या आ गया, QT प्लस 1 इक्वल्स टू D. ये D आ गया, ये D आ गया. Is it clear? So the next state is equals to D. D is the input. So final conclusion is that in D flip flop, next state is equal to the input state. ठीक है, QT plus 1 equals to D. Is it clear? नेक्स्ट अब इसमें अपन एक और फर्दर अपन स्टडी करेंगे JK फ्लिप फ्लॉप. JK फ्लिप फ्लॉप की स्पेशलिटी क्या रहेगी, क्या इसके एडवांटेज हैं, वो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो इन केस ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप there is the advantage or the speciality of JK flip flop is that the indeterminate condition of the SR flip flop is avoided or overcome by using the JK flip flop. हमें तो मैं रिमाइंड करूं, SR फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों पे 1-1 अपन दे दें S और R पे, तो कौन सी कंडीशन आएगी, रेस अराउंड कंडीशन. रेस अराउंड कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट कंडीशन. है ना, जैसे यहाँ पे देखें अपन, ये जैसे अपन 1-1 दे रहे हैं, जैसे 1-1 दिया है ना, यहाँ पे 1-1 दे, तो 1-1 के केस में क्या है, जैसे 1-1 दिया तो कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, इनडिटरमिनेट कंडीशन. दोनों पे 1-1 दिया तो कौन सी कंडीशन है, इनडिटरमिनेट कंडीशन. एक्चुअली ये कौन सी कंडीशन है, रेस अराउंड कंडीशन. तो इस अगर प्रॉब्लम को या इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है, अपन S और R पे 1 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या फ्लक्चुएट करता है, 0-1 0-1 0-1 में कंटिन्यूअस वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा. तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक्चुअली आउटपुट में 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है. अगर कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट करता रहे 0-1 0-1 0-1 फास्ट फॉर्म में, तो अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. जैसे कोई लाइट है, ब्लिंक है,
अगर वो कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करते रहेंगे तो अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये एक्चुअली ऑन मोड में है कि ऑफ मोड में। अगर वो ऑफ में है तो बंद हो जाना चाहिए, ऑन है तो जलते रहना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर वो कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट करती रहेगी तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो ऑन कंडीशन में कि ऑफ कंडीशन। तो सिमिलर वही अप्रोच यहाँ पे है। अगर आउटपुट 0101 में चेंज होता रहेगा, कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आउटपुट स्टेट में एक्चुअली 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। तो इस इनडिटरमिनेट कंडीशन को अवॉइड करने के लिए अपन कौन सा फ्लिप फ्लॉप काम में लेते हैं? जेके फ्लिप फ्लॉप को। इज इट क्लियर? अब वो कैसे अपन अवॉइड करते हैं उसको अपन यहाँ समझते हैं। दोनों केस में अपन कंपेयर करें तो ये इसमें जो अपन ने जेके के लिए एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाया था, सेम अपन ने यहाँ जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाया। इनपुट में 2 एंड गेट लिए, आउटपुट में 2 नॉर गेट लिए। ठीक है, दोनों इनपुट वाले एंड गेट को अपन ने किससे कनेक्ट करा? क्लॉक पल्स से करा। जैसे इस वाले सर्किट में देखें, ये वाला सर्किट में क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट एंड गेट लिए, आउटपुट में नॉर गेट लिए, इनपुट में एस और आर लिया, दोनों को क्लॉक पल्स से कनेक्ट करा, आउटपुट में क्यू और क्यू बार है। ठीक है, सेम अपन ने यहाँ बनाया। बस चेंजेस क्या करे अपन ने कि फर्स्ट जो एंड गेट का इनपुट था उसको एक्चुअली किससे कनेक्ट कर दिया? आउटपुट क्यू से। ये वाला पोर्शन ये चेंज हुआ। दूसरा क्या करा अपन ने? दूसरा जो एंड गेट है उसके इनपुट को अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया? दूसरे सेकंड वाले आउटपुट क्यू बार से। ठीक है, ये इसमें चेंजेस कर रहे हैं अपन जेके फ्लिप फ्लॉप में। चेंजेस अपन ने क्यों करे हैं? टू अवॉइड द इनडिटरमिनेट कंडीशन। इनडिटरमिनेट मतलब अपन उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये उसका डिफॉल्ट है, उसकी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अपन ने जेके फ्लिप फ्लॉप काम किया। और जेके फ्लिप फ्लॉप में इनडिटरमिनेट कंडीशन को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए इसने क्या अप्रोच लगाया कि इनपुट को सीधा एक लाइन से किससे कनेक्ट कर दिया? आउटपुट से। यानी इनपुट में जो एंड गेट था उसके इनपुट को किससे कनेक्ट कर दिया? आउटपुट क्यू बार क्यू से। दूसरा जो वाला सेकंड जो एंड गेट है उसके इनपुट को किससे कनेक्ट कर दिया? आउटपुट क्यू बार से। इज इट क्लियर? ये इसमें चेंज हुआ फर्स्ट जो डिजाइनिंग में। एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंपेयर कर रहा हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप से, तो ये इसमें चेंज आया। समझ में आई बात? दूसरी बात अपन अब इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल में अपन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या है? क्यूटी की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है। कौन सी स्टेट है ये? नो चेंज स्टेट। तो आउटपुट क्या रहेगा? जो प्रीवियसली अवेलेबल था। प्रीवियसली अवेलेबल में क्यूटी पे क्या था? 0 था, तो आउटपुट में भी क्या आ गया? 0 आ गया, नो चेंज कंडीशन। ठीक है, दूसरी स्टेट में क्या है? क्यूटी पे 0 है, जे पे 0 है, के पे 1 है। ठीक है, जे यहाँ किससे इक्विवेलेंट है? एस से। के यहाँ किससे इक्विवेलेंट है? आर से। ठीक है, अब यहाँ जे की वैल्यू 0 है यानी एस इक्वल टू 0, तो कौन सी स्टेट है? ये रीसेट स्टेट है। आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ये आउटपुट 0 आ गया, ये 0 आ गया। थर्ड स्टेट में देखें, क्यूटी की वैल्यू 0 है, जे पे 1 है, के पे 0 है। ये कौन सी स्टेट है? सेट स्टेट है। सेट स्टेट में आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेट है बेटा, ये इसको समझना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले केस में अपन देख रहे हैं कि क्यूटी की वैल्यू 0 है, मतलब प्रीवियसली उसमें 0 था फ्लिप फ्लॉप में। जे पे अपन ने 1 दिया, के पे अपन ने 1 दिया। जे पे अपन ने 1 दिया, के पे अपन ने दिया। और जे और के किससे इक्विवेलेंट है? एस और आर से। तो एस और आर बोथ पे अपन इनपुट पे 1 1 दे दें तो कौन सी कंडीशन आ रही थी वहां पे? रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को अपन क्या बोल रहे थे वहां पे? इनडिटरमिनेट कंडीशन। अब इस केस में क्या हुआ? जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ कि इस केस में QT प्लस 1, नेक्स्ट स्टेट एक्चुअली क्या आ रही है? QT का बार। QT का बार मतलब क्या है? जो प्रीवियस जो उसमें अवेलेबल था उसका बार कर दो। तो इस वाले केस में प्रीवियसली क्या अवेलेबल था? 0, तो 0 का बार करा तो आउटपुट क्या आ गया? 1, तो दैट इज द 1। अब जैसे लास्ट वाली टेबल में अपन देखें, यहाँ भी जे और के क्या दोनों 1 1 है, रेस अराउंड कंडीशन है। प्रीवियसली उसमें क्या 1 था, तो प्रीवियस जो प्रेजेंट था उसका बार कर दो। प्रीवियसली 1 है तो 1 का बार करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। ये एक्चुअली क्या है? क्यूटी का बार, जो 1 था उसका बार कर दिया तो 0 आ गया। तो समझ में आई बात? तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? जेके फ्लिप फ्लॉप की स्पेशलिटी या एडवांटेज देखें या एसआर फ्लिप को अपग्रेडेड फॉर्म या एडवांस फॉर्म देखें तो इसमें क्या हुआ कि इनडिटरमिनेट कंडीशन जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में आ रही थी 1 1 वाली जो कंडीशन थी जिसपे एस पे 1 और आर पे 1 दे रहे थे, रेस अराउंड कंडीशन थी, इनडिटरमिनेट कंडीशन थी, उसको अपन ने अवॉइड कर दिया जेके फ्लिप फ्लॉप में। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या कंक्लूजन निकला? व्हेन जे और के बोथ आर 1, when j and k both are 1, indeterminate कंडीशन है, तो इस केस में आउटपुट स्टेट एक्चुअली क्या है? प्रीवियस स्टेट का बार।
या टॉगल ऑफ Q2। टॉगल किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट को, टॉगल को, कॉम्प्लीमेंट, बार को डैश से, इस तरह से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटपुट स्टेट इसमें क्या है? QT का बार। अगर दोनों पे 0 0 है तो QT प्लस 1 क्या है? नो चेंज कंडीशन है। तो इस केस में नो चेंज कंडीशन में क्या रहेगा? जो प्रीवियसली प्रेजेंट था वो नेक्स्ट में आ जाता है। सो QT प्लस 1 इक्वल टू QT, दैट इज द नो चेंज। इज इट क्लियर? ओके। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से अपन क्या डिजाइन करें? इसका के मैप से इक्वेशन डिफाइन करें, इक्वेशन डेराइव करें। तो इक्वेशन डेराइव करने के लिए एसओपी फॉर्म के रेस्पेक्टिव 1 1 कहाँ प्रेजेंट है? ये इसमें कितने प्रेजेंट है? 4 1 है। तो फर्स्ट 1 कहाँ है? 0 1 0। Q2 पे 0 है, J पे 1 है, K पे 0 है। QT पे 0 है, J पे 1 है, K पे 0। तो ये वाला फर्स्ट 1 ये आ गया, ये आ रहा फर्स्ट 1। सेकंड 1 कहाँ प्रेजेंट है? QT पे Q पे 0 है, J पे 1 है, K पे 1 है। तो Q पे 0 है, J पे 1 है, K पे 1 है। तो ये सेकंड 1 ये आ गया, ये सेकंड 1 है। थर्ड 1 कहाँ प्रेजेंट है? या Q पे 1 है, J और K पे 0 है। तो Q पे 1 है और J और K पे 0, ये थर्ड 1 आ गया। फोर्थ 1 कहाँ पे है? या Q पे 1 है, J पे 1 है, K पे 0 है। ये Q पे 1 है, J पे 1 है, K पे 0। तो ये सेकंड 1 है। तो ये 4 1 अपन ने प्रेजेंट कर दिए यहाँ के मैप पे। अब नेक्स्ट अप्रोच क्या है? इसमें ग्रुपिंग बनाओ। ग्रुपिंग कैसे बनाई अपन ने? ये 2 का ग्रुप बना ऊपर का, ठीक है, और एक ये कॉर्नर के 2 का ग्रुप बना दिया। एक ये कॉर्नर ले लिया, एक ये कॉर्नर ले लिया, 2 का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके में कितने ग्रुप बने? 2 ग्रुप बने। कितने कितने के ग्रुप बने? 2 2 के 2 ग्रुप बने। इज इट क्लियर? 2 2 के अपन ने 2 ग्रुप बना लिए, ठीक है। अब इसका अपन इक्वेशन डेराइव करें। इक्वेशन डेराइव करने के लिए ऐसे ऊपर का ग्रुप लिया, ये वाला ग्रुप अपन ने कंसीडर करा। इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या है? Q पे 0 है, तो ये Q डैश में आ गया। डैश से रिप्रेजेंट करें चाहे बार से रिप्रेजेंट करें, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है? Q पे 0 है, Q के 0 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q डैश से। वर्टिकली देखें तो थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है? J इक्वल टू 1 पे। यहाँ भी J की वैल्यू 1 है, यहाँ की भी J की वैल्यू 1 है। तो कॉमन क्या है? J इक्वल टू 1। J इक्वल टू 1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? J से। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? JQ बार और JQ डैश, ये आ गया, ये वाला JQ डैश, ठीक है। दूसरा अपन ने ये कॉर्नर का दो का ग्रुप बनाया। कॉर्नर के ग्रुप में अपन देखें हॉरिजॉन्टल में क्या है? Q इक्वल टू 1 है, तो Q आ गया, ये Q आ गया, ठीक है। वर्टिकली देखें तो फर्स्ट कॉलम है और फोर्थ कॉलम है। फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन क्या आ रहा है? K इक्वल टू 0, ठीक है। K इक्वल टू 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K बार या K डैश से। तो ये K डैश आ गया, तो K डैश Q। तो फाइनल क्या हुआ? JQ डैश प्लस K डैश Q। इज इट क्लियर? तो फाइनल आउटपुट एक्चुअली अपन ने किस फॉर्मेशन में आया? इनपुट तो यहाँ पे क्या है? J और K हैं। प्रीवियस आउटपुट क्या था? Q था। नेक्स्ट आउटपुट क्या है? QT प्लस 1। तो ये इसका ऑपरेशन रहेगा JK फ्लिप फ्लॉप का। आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टॉगल फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। आज अपन ये JK फ्लिप फ्लॉप तक ही पढ़ते हैं। तो अभी इसमें तुम्हें कोई डाउट लग रहा हो, कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, तो वो मुझसे आप अभी डिस्कस कर सकते हो। अभी इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिस्कशन में कोई भी इशू आ रहा है, जो मैंने आज क्लास ली है उस क्लास के रेस्पेक्टिव आप कोई भी क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो, कोई भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये है बेटा, अभी आपको पढ़ना तो जो मैंने क्लास लेक्चर ले रखे हैं, हो सकता है कि आप एट ए टाइम जब मैं कंटिन्यूस या लाइव क्लास ले रहा हूँ तो उस टाइम हो सकता है आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं इसके जो वीडियो लेक्चर इसकी रिकॉर्डिंग करके ना कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। उस यूट्यूब चैनल पे आप इसको डाउनलोड करके या उसको डायरेक्टली आप सुन सकते हो। सुनने के बाद भी अगर तुम्हें कोई इशू आता है तो वो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके जो पीपीटी हैं, जो नोट्स हैं, वो मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बुक्स बताई हैं, उनके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, उनकी वर्किंग पढ़ो। और वहाँ भी उसके बाद भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे टेलीफोन ही कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, गूगल क्लासरूम पे बता सकते हो, कहीं भी इसको डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।